So today we will discuss about functions. So we'll start with basic definition. First, that is one function, and then onto function. One means injective. Another name is injective function. And onto means surjective function. One onto. Injective, surjective. When a function is both injective and surjective, that is one plus onto, then that kind of function will be called bijective function. It is called bijective function. One and onto, that is injective plus surjective, that is bijective. Bijective function. Now okay, there was some other type of, meanwhile we will discuss about many to one. Okay, many to one function, these are extra. Okay, then into function, identity function, but mainly we will discuss about this one and this one. Okay, identity function, then constant function, mostly we are familiar with trigonometric function, logarithmic function, inverse trigonometric function we did, वो हम कर चुके हैं. Logarithmic function, exponential function, trigonometric function, algebraic functions. Okay, so let's थोड़ा सा start करते हैं. This is basically the basic classification. So let's start. Suppose this is a set, non-empty finite set, non-empty finite set x. Suppose x, this is belongs to sign, non-empty finite set. And suppose this is another non-empty finite set. Suppose y, which belongs to B set. Suppose this is x1, x2, x3. And suppose this is y1, y2, y3. If x1 corresponds or related with y1, and suppose y2 related with x2 related with y2 and x3 related with y3 by a relation f or r, that kind of correspondence is called one function. One, that means अगर suppose y equals to fx is a real valued finite well defined function, relation y and x. So that means what will be y1? Y1 will be f of x1, y2 will be f of x2, y3 will be f of x3. Okay, now this is injective or injective function or one function. Okay, see, that means for
suppose yi belongs to B, or you can say for all xi belongs to A, if there exists, this is there exists sign, अगर हर एक x individual x1 is related with one, only y1, that means this is called image set, and this is called pre-image set. xi belongs to A if there exists exact and unique yi belongs to B. That kind of function is called 1 1. मतलब एक के साथ एक ही रिलेटेड होगा, वन एक एलिमेंट का इमेज ओनली वन, सिंगल वन, नॉट लाइक दिस दैट x1 x2 बिलोंग्स टू y1, ऐसे नहीं होगा. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन. ओके, दिस वन इज द डेफिनेशन for any x. Suppose you for x1 का image y1 or someone related एक ही होगा, it will have only one image, that is 1 1 or injective function. Okay, now suppose there exists another function. Suppose this B set and this is A set, right? X belongs to A, Y belongs to B. Suppose there is another, suppose x3 suppose y4. Okay, so that means y4 will be f of x3 again. Or you can say, I will do, yeah, that means for there means for every y, for all yi belongs to B, there exist उसमें at least इस तरफ there exists at least one xi belongs to A as a pre-image. Okay, that means what y belongs to B. This is the image set when function is suppose A to B, when it is going from A to B. This is the function definition, mathematical denotion, A to B. So that means this is your domain, okay, and this B set is your codomain, or later on it will be might be range also. Okay, codomain and domain or range. Okay, or range. Range is a subset of codomain. We'll see that, but in this case, y जो image set हर एक एलिमेंट का at least for any y, whenever you take any y that is image set elements, there exists at least one xi that is pre-image in A, that is in codomain set. For example, this y4 and y3, both of them are image. This is such a relation in this, as per this diagram, कि वहाँ पे x3 उसका इमेज है, but at least one pre-image तो है, बस that's it. That is the definition. At least one. It might be more than one. मतलब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा कि suppose it don't have any pre-image here. मतलब backward अगर जाओगे, okay, this is your
definition of onto function. Onto, or you can say surjective function. Surjective, the surjection. This is your surjective or surjection function. Let's see another another point of view. This is x belongs to A. This is y belongs to B set. F is A to B. This is the function. So that means f of A will give you B. This is main finally. Suppose this is x1, this is y1. The relation is x1. Suppose this is x2, y2. This is suppose x3, y3. Suppose there is y4. Now tell me, this, when you consider x1 the forward direction, so every element has a exact, so this is 1 function. Now see this element, this, when you see the backward, this image, this element y4 which is belongs to B set, there does not exist any xi belongs to A. So it is not an onto, right? Acha, can you tell me if there is any element x4, suppose no y है, if a function, you get a function, अगर तुम ऐसा कोई function मिले, you get a function that it don't have any, you are not getting any images there in B, what will happen? Will still call it a relation or just function or just a relation? Whenever see, if you have any xi which belongs to A, if you didn't get any fxi, which belongs to B set, then it will not be a function, it will only be a relation. Okay. Now we'll see, अब हम देखेंगे कि एग्जाम में कैसे ये onto, when a function is 1 okay and onto both, then that function both, okay, then that function will be called bijective function. Bijective function. Okay, always remember this, every element should have a pre-image, और एक का एक एटलीस्ट एक प्री-इमेज मिलना चाहिए यहाँ पे, जिस सेट से ये आ रहा है रिलेशन. दो भी हो सकता है, we'll see that kind of here also. We'll discuss about the ये. For example, यहाँ पे एक क्वेश्चन है. Now it has actually two for ये sample paper here. So if n to n, this is the here, so that means this is your domain, this is your range, or you can say okay है, okay, fx equals to 5x, fx equals to 5x, this is the relation. Now this is domain, or you can say range or codomain. Range is a subset of codomain. Okay. This is your domain and codomain. This is a subset of proper codomain. Now देखो, so first step 1, कैसे 1 proof करोगे, that is injective. For injective, यहाँ पे मेन ये होगा, टेक fx1, इंजेक्टिव मीन्स क्या 1 so let fx1 let fx1 equals to fx2, so that means 5x1 equals to 5x2, because f of x1, what will be f of x1, that is 5x1, and what will be f of x2, that will be 5x2. तो 5x2 ही होगा ना,
तो देखो 5 कैंसिल आउट, सो x1 इक्वल्स टू x2, ठीक है। सो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि इफ यू टेक x1 fx1 और fx, और अगर तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो और अदरवाइज प्रूफ करने का और एक तरीका भी है, देखो मेरा, और अदरवाइज एज्यूम दैट fx1 नॉट इक्वल्स टू fx2, दोनों इमेज अलग है, सो 5x1 नॉट इक्वल्स टू 5x2, सो x1 नॉट इक्वल्स टू x2। मतलब क्या है, दोनों स्टेटमेंट क्या मीनिंग आउटकम सेम ही है कि तुम्हारा इमेज डिफरेंट था तो तुम्हारा प्री इमेज जो है x1 वो भी डिफरेंट आया। यहाँ पे मैंने एज्यूम किया था, दिस इज द कॉन्सेप्ट, यही से करना है कि मेरा इमेज सेम है तो मेरा प्री इमेज भी सेम ही आएगा। आउटकम्स देखो है कि नहीं, दैट इम्प्लाई प्री इमेज भी सेम। सो दिस इज इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। नाउ अब सोचो कि तुम्हारा ऑन टू, फॉर हाउ टू प्रूफ इट इज ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव और नॉट, इसमें क्या करना है, यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि वेदर इट इज सर्जेक्टिव और नॉट। सो इफ x दैट इज y इक्वल्स टू 5x, सो x इज इक्वल टू क्या होगा 1/5y, x मीन्स if inverse y that is 1/5y, so if inverse x क्या होगा 1/5x, अंडरस्टूड। सो y इक्वल्स टू fx, सो x क्या होगा f इस तरफ, सो f इनवर्स, इसको 1/f तो नहीं लिख सकते ना, f इनवर्स f इनवर्स x की जगह x इंस्टेड ऑफ x यू कैन राइट f इनवर्स y। तो मैंने x फर्स्ट, मेरा काम है y जो फंक्शन होगा उसको x इन, ये y इन टर्म्स ऑफ x है, ये x इन टर्म्स ऑफ y में एक्सप्रेस करना है, मतलब x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, फिर x मीन्स क्या, तुम्हारा f इनवर्स y वो सब्स्टिट्यूट कर दो, एक f इनवर्स y, और दोनों तरफ अगर यहाँ पे y की जगह दोनों तरफ x पुट कर दो। सो नाउ व्हाट विल आई गेट, f इनवर्स x इज इक्वल टू x/5। हाँ या तो देखो अच्छे से, दिस वन। नाउ चेक व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ f इनवर्स x क्या होगा, d, आई एम डिनोटिंग इट डोमेन, मतलब तो ये होगा, देखो द इंटायर तुम्हारा, अच्छे से बताओ, अगर नेचुरल नंबर में होता है तो ठीक है, क्योंकि तुम सब्स्टिट्यूट करोगे क्या, बताओ तुम x की जगह क्या क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, राइट, 5 6 ऐसे नेचुरल नंबर्स। तो 1 से अगर तुम 5 4 देखोगे वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट विल गिव यू अ फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। सपोज 1/4 it can give, 1/5 it can give, 2/5 it can give. These are not natural numbers, right? These are not natural numbers. 3/5. So we can say this domain of f inverse is not entire natural number. लेकिन यहाँ पे देखो, ये तो तुम्हारा domain of f inverse should be range of f. लेकिन यहाँ पे तो हर नेचुरल नंबर नहीं हो रहा है, तो कैसे करोगे, ठीक है नहीं, अच्छे से देखना। समझ लो, ये तो नेचुरल नंबर हो नहीं रहा है, हो रहा है क्या, सो दैट मीन्स ये 1 1 तो था, बट
इट इज नॉट एन डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज 5 टाइम्स ऑफ नेचुरल नंबर, वही नेचुरल नंबर्स है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, नॉट इन नेचुरल नंबर्स में तो ये भी काउंट होता है, लेकिन ये तो काउंट नहीं, ये सिर्फ 5 का मल्टीपल्स जो होगा दैट विल गिव यू ए नेचुरल नंबर। अच्छे से देखो, whenever it is 5 times of any natural number, 5 cancel होगा, then you will get a natural number, otherwise you will get this kind of proper fraction. So it is not an onto, मतलब that means our main purpose, our main concept क्या हुआ, what is our main purpose, our main क्या हुआ कि we have to prove that domain of F inverse is basically this one। अगर तुम डायग्राम से देखोगे तो देखो ये तुम्हारा F हुआ, तो दिस इज योर A, दिस इज योर B, दिस इज सो डोमेन ऑफ F इज A, और रेंज ही लिखते हो, रेंज ऑफ F और कोडोमेन बेसिकली ऑफ F इज बेसिकली B, ये हुआ। नाउ अगर इफ यू चेक द F inverse is this is the F inverse, so domain of F inverse क्या हुआ, that should be B, and range और codomain of F inverse will be domain, F inverse का domain ये होगा ना, this set, so this equals to A। तो देखो domain of F inverse should be B, हाँ domain of F inverse B हुआ, लेकिन B तो यहाँ पे तुम्हारा नेचुरल नंबर है, और यहाँ पे 5 टाइम्स ऑफ नेचुरल नंबर्स विल गिव यू ए प्रॉपर ये इंटीजर, तो ये तो नहीं हुआ। सो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज बेसिकली नॉट इक्वल्स टू रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ नहीं हो रहा है। सो दैट मीन्स ऑनटू फंक्शन का डेफिनेशन क्या था, मैंने क्या बताया, द डेफिनेशन ऑफ ऑनटू फंक्शन इज व्हेनेवर, दैट मीन्स एवरी इमेज, फॉर एग्जाम्पल एफ इनवर्स अगर लेते हो, यहाँ पे जो एलिमेंट होगा, सब एलिमेंट का सपोज 4 और सपोज 10, उसका प्री इमेज नहीं मिलेगा, सम एलिमेंट विल नॉट हैव एनी प्री इमेज, ठीक है नहीं, एफ एक्स में हो जाएगा, एफ इनवर्स में नहीं होगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे डोमेन ऑफ एफ इनवर्स 5 टाइम्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आ रहा है, और यहाँ पे रेंज ऑफ एफ क्या गिवन था, n, विच इज नॉट इक्वल्स टू, बहुत कम है। सो इट इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन, इट इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। अब देखो यही फंक्शन को आई विल चेंज इट इनटू ए 1 ऑन टू फंक्शन। देखो मैं बता रहा हूँ, इट्स अ टोटल प्योर लॉजिक, जितना क्वेश्चन करेंगे उतना तुम्हारा ये होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये फंक्शन इफ इट इज रियल नंबर टू रियल नंबर हुआ, so this is your domain of f is real number, and range और codomain of f is also real number, ठीक है। now f inverse x क्या था, f inverse x मेरा आया था x/5। अब देखो domain of f inverse क्या हो, domain of f inverse from here, domain of f inverse is, अगर तुम रियल नंबर है, नहीं रियल नंबर, तो रियल नंबर में तो 1 -1 1 0 1 2 3 माइनस इंफिनिटी टू डॉट 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 इंफिनिटी में कोई कुछ भी हो सकता है, तो सब्सटीट्यूट एनीथिंग। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज बेसिकली कोई भी रियल नंबर पुट करो, एनी रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि मुझे नेचुरल नंबर ही सब्स्टिट्यूट, वहाँ पे था कि 1 2 3, यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर, सो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज बेसिकली रियल नंबर, क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है इफ द फंक्शन इज डिफाइंड इन दिस वे। अगर ऐसे डिफाइंड होता है ना फंक्शन, इफ इट इज डिफाइंड इन दिस काइंड ऑफ वे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों बता, क्योंकि मैं तो फॉर एफ एक्स मैं कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, सो दैट मीन्स एफ ऑफ तुम्हारा अगर 0 पुट करता हूँ तो ठीक है 0 हुआ, एफ ऑफ अगर 1 पुट करता हूँ तो दैट इज 5 हो, एफ ऑफ 3 पुट करता हूँ so that is 15 हो। और एफ इनवर्स में ही मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ, सोचो एफ ऑफ मैंने 0 पुट किया, या सोचो कि
एफ इनवर्स मैंने 15 पुट किया तो मेरा 3 आ रहा है। एफ इनवर्स मेरा सपोज 5 पुट कर रहा हूँ, मेरा 1 आ रहा है। एफ इनवर्स में अगर 2 भी पुट करता हूँ तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा 2/5 आ रहा है। 2/5 वहाँ पे पॉसिबल नहीं था लेकिन यहाँ पे तो पॉसिबल है, वहाँ पे 0 भी पॉसिबल नहीं था लेकिन यहाँ पे 0 भी पॉसिबल है कि नहीं? क्योंकि जीरो का एक प्रीम है, क्योंकि 0 इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर। समझ आ रहा है? दिस इज द वे। सो दैट मीन्स व्हेन द फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल की जगह ये में इसमें होगा, सो दैट फंक्शन देखो अब मैं क्या कह सकता हूँ, डोमेन देखो मेरा इक्वली हो गया कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स रियल नंबर फील्ड, और वही तुम्हारा हुआ बेसिकली रेंज ऑफ एफ। या तो मैं ऐसे कह सकते हो रेंज और कोडोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज बेसिकली डोमेन ऑफ एफ और दिस। बेसिकली इससे ही मैं प्रूव करता हूँ ऑन टू फंक्शन। वी नॉर्मली प्रूव इन दिस वे, हम ऐसे ही प्रूव करते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा 1 1 भी हुआ और ऑन टू भी हुआ, ऑन टू भी हुआ। सो दैट मीन्स दोनों एक साथ हुआ। इफ फंक्शन इज 1 1 मीन्स इंजेक्टिव as well as onto, that means surjective, that function is called bijective. Okay, this understand? एक बार देख लो, 1 1 means injective and onto means surjective। फंक्शन दोनों ही हो रहा है क्योंकि 1 1 भी होगा, वही fx1 equals to fx2, so x1 equals to x2, और दोनों स्टेटमेंट सेम ही है। फॉर एग्जाम्पल एक अच्छा क्वेश्चन मैं लेता हूँ, यहाँ पे केस स्टडीज था। सपोज एक केस स्टडीज ऐसा था, हाँ दिस इज द केस स्टडी क्वेश्चन मीन्स कॉम्पिटेंसी टेस्ट। एक फंक्शन सपोज तुम यू आर इन ए मेला और समथिंग, यू आर इन ए दिस काइंड ऑफ ये, वो होता है ना मेरी गो राउंड टाइप, तो ऐसे। So this function is given as if y equals to fx equals to x square. Okay, this type of function. तो यहाँ पे ऐसा था, ये अटैच था, ऐसे ऐसे peoples are going this y equals to fx. Now statement 1 is whether it is 1 1, that is injective or not. This is the case study, injective function or not. Second statement, whether it is onto function or not. Let's check. And this function, यहाँ पे दो questions है। एक है when the function is from real number to real number. Okay, this is first case, and second case, the function is only real number to real number. So check, देखते हैं whether it is injective or means whether it is bijective or not. Like suppose if x1 equals to fx2, let, so that means x1 square equals to x2 square, यही तो होगा। अगर y equals to fx this kind of, this is a parabola basically, तो पैराबोला का तुम्हारा पैराबोलिक फंक्शन, so x1 square minus x2 square that is equals to 0, so x1 plus x2, x1 minus x2 that is equals to 0. Now if you take this one, तो ये से तो ये so that means x1 minus x2 जो है वो 0 होगा, और x1 plus x2 equals to 0. So इससे तुम्हारा आ रहा है x1 equals to x2
दैट मीन्स fx1 इमेज अगर सेम हुआ, सेम इमेज कोइंसिडेंस, इमेज अगर सेम तो तुम्हारा देन प्री इमेज ऑल्सो सेम, और यहाँ पे x1 इक्वल्स टू माइनस x2, यहाँ पे दैट मीन्स यहाँ पे इमेज सेम नहीं हो रहा है। अब इसके वजह से तो ये हो ही पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये रियल नंबर क्लास है, नेगेटिव रियल नंबर तो हो नहीं सकता, ये तो इफ x1 ले नहीं पाएंगे, ठीक है। So this means this then on in both cases this is 1 1 function. This is 1 1 हो गया, okay, that means इंजेक्टिव हो गया, it is an इंजेक्टिव फंक्शन। अब देखते हैं ये ऑन टू होता है या नहीं। ऑन टू मीन्स y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, राइट। सो x इक्वल्स टू क्या होगा, रूट ओवर y plus minus, so that means x means f inverse y equals to plus minus root over y, so f inverse y की जगह दोनों तरफ x पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट x, ठीक है। नाउ तुम्हारा फंक्शन क्या था, रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर से रियल नंबर, और दूसरा केस था इफ द क्वेश्चन इज लाइक दैट, रियल नंबर से रियल नंबर। इन सेकेंड केस देखो यहाँ पे रियल नंबर फील्ड जो है वहाँ पे नेगेटिव नंबर भी हो, ये इसमें ऑन टू हो जाएगा। देखो क्योंकि तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स तुम्हारा क्या होगा, व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स, बताओ मुझे। एक्स के जगह कोई भी रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर सब्सटीट्यूट करो, कोई भी, क्योंकि आई एम टेकिंग दिस केस, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर सब्सटीट्यूट करो। नेगेटिव रियल नंबर का तो ये नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स, दैट इज कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ ये करोगे। सेकेंड केस, फर्स्ट केस में डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, इसमें क्या हुआ, देखो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज ओनली पॉजिटिव रियल नंबर, राइट। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 करोगे तभी, क्योंकि इसका तो कुछ नहीं होगा, दैट इज इमेजिनरी नंबर, या रूट ओवर -2 दैट इज 2i, राइट, i इज -1, ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया, इमेजिनरी नंबर। तो x के जगह सब पॉजिटिव, लेकिन देखो सो दैट शुड बी इक्वल्स टू, अगर ये ऑन टू होता है, ऑन टू फंक्शन होता है, तो एवरी इमेज शुड हैव ए प्री इमेज, मतलब यहाँ पे ऐसा कोई हुआ, सो ये तुम्हारा हो सकता था रेंज ऑफ एफ होना चाहिए,